Good morning, friends. Welcome back. Today we have taken frequently asked questions in banking examinations. So let's start. The first question is, where is the headquarter of African Development Bank? The options are Addis Ababa, Riyadh, Nairobi, Abidjan. Just pause the video for 2 seconds and try to answer the question. Hope so you have answered the right question. The answer is Abidjan. Abidjan is a country situated in Ivory Coast, and Addis Ababa is the capital of Ethiopia. Riyadh is the capital of Saudi Arabia, and Nairobi is the capital of Kenya. In Nairobi, you will find the headquarter of United Nations Environment Program. In Riyadh, you find the headquarter of GCC, Gulf Cooperative Council, in which there is six country which shares the Persian Gulf. And Iraq is not the member. Iraq is not the member of Gulf GCC. Iraq नहीं है. And Addis Ababa, you will find the headquarter of African Union. And in African Union, there is 52 members. And in African Development Bank, you have 81 members. And the what you call president of African Development Bank is Akinwumi Adesina. Akinwumi Adesina. And Riyadh हो गया. हाँ. And the currency of Nairobi is the currency of Kenya is shilling. And Riyadh currency is Rial. RIEL. Don't get the confusion with the spelling of RIYL. RIYL is the currency of Iran, and RIEL is the currency of Saudi Arabia. And currency of Ethiopia, that is capital of Addis Ababa is Ethiopia, and its currency is Bir, BIRR, Bir. And recently, the Prime Minister of Ethiopia, Addis Ababa, previous year, means in 2019, has won the Nobel Peace Prize. Now, the next question is, see, this is the political map of Africa, and here you will find Ivory Coast. The capital is Yamoussoukro. Jama Yamoussoukro. And here you will find South Africa, and here it is Ethiopia. This is Ethiopia, the capital of Addis Ababa. Here you will find Kenya. This is Kenya, which shares the boundary with Indian Ocean, मतलब coast Indian Ocean का है. And this is Madagascar. It is the largest island in Indian Ocean. And the uh, neighboring countries of Ivory Coast is Ghana and Liberia. Now the next question is, what does A stand in a mudra? Asset, account, agency, actuary. Just pause the video and answer the question. Hope so you have answered the question. The right answer is account. Mudra was now launched in 8 April 2015. 8 अप्रैल 2015 को इसको लॉन्च किया गया था. और इसको इसमें ना इसका काम था एमएसएमई को बूस्ट अप करना, माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करना एमएसएमई को. और इसमें 3 प्रकार का लोन होता है: शिशु, किशोर, तरुण. शिशु में 50,000 तक, किशोर में 5 लाख तक, एंड इन तरुण 10 लाख, अप टू 10 लाख लोन मिलता है. और मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी. और मुद्रा से क्वेश्चन और क्या बन सकता है? हाँ, मुद्रा जो है ये सिडबी का सब्सिडरी है. सिडबी, जिस स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है. और अभी इसका सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, मोहम्मद मुस्तफ़ा है. एंड सुन ही विल बी रिप्लेसिंग बाय एस रमन्ना. एस रमन्ना क्योंकि बैंक जो जितने भी ये
अपॉइंटमेंट्स होता है सीएमडी बैंक का, दिस एक्चुअली डन बाय बैंक बोर्ड ब्यूरो, एंड बैंक बोर्ड ब्यूरो चेयरमैन इज भानु प्रताप सिंह, बीपी सिंह, नो नो बीपी सिंह नॉट, इज बीपी शर्मा, भानु प्रताप शर्मा, या भानु प्रताप शर्मा। एंड वन मोर माई रिगार्डिंग माइक्रो, हाँ जो हाँ, ये एक एक्चुअरी, एक्चुअरी क्या होता है ना, एक्चुअरी एक प्रोफेशनल होते हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस पॉलिसी डिजाइन करते हैं बाय यूजिंग देयर मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल टेक्निक्स। सो या दैट्स इट। ये एक्चुअरी जो होते हैं, ये एक्चुअली ये इंश्योरेंस सेक्टर को पॉलिसी डिजाइन करने में हेल्प। Now move to the next question. Which organization releases Consumer Price Index? The options are NSO, CSO, RBI, Ministry of Finance. The right answer is CSO. CSO stands for Central Statistical Organization Office, and it's work under the Ministry of Statistics and Planning Implementation. The current cabinet minister of Ministry of Statistics Implementation and Implementation के हैं आपके सदानंद गौड़ा, and his constituency is South Bangalore, and yeah, and CPI का बेस ईयर जो होता है ना 2011-12 लेते हैं, 2011-12, yeah 2011-12, or it is changed, no it's changed now, it's not changed now, it is 2000 2015-16, sorry. Now the base year is 2015-16, and the base year of WPI stand for Wholesale Price Index, उसका बेस ईयर है 2011-12। और CPI में हम लोग ना मतलब क्या बोलते हैं, चेंज इन रिटेल प्राइस, जो कि जितना भी एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि हम लोग डोमेस्टिक यूज में यूज करते हैं, तो उसमें जो क्या एवरेज प्राइस चेंज होता है वो हम लोग CPI से मेजर करते हैं। और जो मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जो उसके लिए पे करते हैं, तो उसका जो चेंज इन प्राइस होता है वो WPI होता है, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स। और होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर होता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है, उसके वो डिसाइड करता है WPO। और CPI जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मेजर करता है। And this CPI, WPI, PPI stands for producer price index। ये मतलब ये सब टर्म्स जो इन्फ्लेमेशन मेजर करने के लिए यूज होते हैं। एंड करेंटली वी आर यूजिंग CPI, वी आर यूजिंग CPI टू मेजर द इन्फ्लेशन। और CPI में मतलब बंच ऑफ बास्केट्स गुड्स, जो कि जितना मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है, जैसे कि इसमें 8 आइटम्स लेते हैं CPI में, जैसे एजुकेशन हो गया, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, फूड्स, क्लोथिंग, वॉट एवर दिस, मतलब 8 आइटम्स होता है। और WPI में हम लोग लेते हैं मिनरल्स, मतलब जो कि यूज बाई व्हाट यू कॉल इन मशीनरी यूज इन मशीनरीज, फ्यूल्स, मेटल, ये सब हमारा WPI में आ जाता है। और इसमें CSO में टोटल 448 रूरल बास्केट से आइटम लिए लेते हैं, और 460 अर्बन अर्बन से। एंड या एंड वन मोर, एंड हाँ, एंड इन WPI में लेते हैं 697 आइटम्स। सो दिस वाज द, और हाँ, RBI, द करंट RBI गवर्नर इज शक्तिकांत दास। देर इज फोर डिप्टी गवर्नर, and Ministry of Finance is the Cabinet Minister of Finance is Nirmala Sitharaman, and the Cabinet and Ministry of State in Finance is Anurag Thakur. Now next question is, which state has the least population density according census 2011? Assam, Arunachal Pradesh, Bihar, Sikkim. एक्चुअली पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करते हैं ना कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में हाउ मेनी पर्सन लिव, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना पर्सन रहता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। एंड अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, बिहार हैज द मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी। बिहार का 1156 शायद, हाँ 1156 बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी है, सबसे मैक्सिमम है। और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है 17, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 17 आदमी रहते हैं। एंड एंड द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, बिहार का पटना, सिक्किम का गैंगटॉक, असम का दिसपुर। द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम इज सर्बानंद सोनोवाल, अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू, बिहार नीतीश कुमार, एंड सिक्किम PS गोयल। एंड द गवर्नर ऑफ असम इज जगदीश मुखी,
अरुणाचल प्रदेश लेफ्टिनेंट जनरल बी डी बख्शी, बिहार का फागू चौहान, और सिक्किम का गंगा प्रसाद। एंड यस, अब काफ़ी हो गया। नो देयर सम क्वेश्चन। हाँ, असम में आपको काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग नेशनल पार्क मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में आपको पक्के टाइगर रिजर्व, नामता और पखुई टाइगर रिजर्व। बिहार में वाल्मीकि, और रिसेंटली इन बिहार गोगी बिल गोगी बिल लेक इन बेगूसराय। No, Gogibi, no, it's sorry, it's Kanwar Lake. KNW, Kanwar Lake in Begusarai has been induced in what you call Ramsar Convention, Ramsar site, and in we celebrate Ramsar site is Ramsar site was for convention on wetland, and we celebrate Wetland Day on 2 February, and this and in Sikkim you will find Kangdang National Park, and in Bihar it is Valmiki Tiger Reserve. There's only one national park, Valmiki National Park, which is situated in East Champaran. Where is Mukundra Tiger Reserve is situated in which state? Rajasthan, Assam, Tamil Nadu, Karnataka. The right option is Rajasthan. In Rajasthan, you will find Sariska, Ranthambore, and in Assam, we get Tamil Nadu, you will find Gulf of Mannar, and one more Gulf of Mannar, and yeah, mines, yeah, Gulf of Mannar, and Gindi National Park, Gundi Gindi National Park. In Karnataka, you will find Anshi, Dandeli, Banerghatta, Bandipur. No, Bandipur is in Madhya Pradesh. Banerghatta, फिर नागरहोल, राजीव गांधी. You will find all the tiger national parks. Now the next question is, who was the president of Indian National Congress when non-cooperation resolution passed? The options are M.K. Gandhi, C.R. Das, J.L. Nehru, Acharya J.B. Kripalani. The right answer is C.R. Das. C.R. Das means Chitranjan Das. And C.R. Das also known as the Desh Bandhu. इनको देश बंधु से भी जानते हैं. And non-cooperation movement was started in 1920 and the resolution was passed in Nagpur session. और इसमें ये 2 साल तक चला था और दिस वाज लॉन्च ऑन 1 अगस्त 1920. द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च ऑन 1 अगस्त 1920 और इस दिन हमारा वो लाल बाल पाल मतलब बाल गंगाधर तिलक द एक्सट्रीमिस्ट फ्रीडम फाइटर वाज पास अवे. बाल गंगाधर चले गए थे और बाल गंगाधर को तीन ट्रियो वी नो. लाल बाल पाल बाल गंगाधर इन महाराष्ट्र, लाला लाजपत राय इन पंजाब एंड बिचेंद्र पाल इन वेस्ट बंगाल. और बाल गंगाधर तिलक से एक दो चीज़ भी और याद रखने का है कि इनको 2 बार जेल हुआ था, वो भी मंडलम जेल और म्यांमार में. और इन्होंने एक बुक लिखा था कि ये आर्यंस थ्योरी दैट आर्यंस वेयर केम फ्रॉम आर्कटिक, मतलब नॉर्थ पोल से आर्यंस आए थे. इन्होंने बुक लिखा था. बाल गंगाधर तिलक हो गया. सीआर दास, हाँ, सीआर दास ने स्वराज पार्टी फॉर्म किया था इन 1 जनवरी 1923 को विथ फादर विद द सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ मोतीलाल नेहरू. मोतीलाल नेहरू was secretary and C.R. Das was the president of Swaraj Party. Motilal Nehru was father of J.L. Nehru. एंड इन गया सेशन में रिजोल्यूशन पास करके इन्होंने स्वराज पार्टी का फॉर्म कर दिया. मैं एक्चुअली इनका मोटिव सेम ही था. जो आईएनसी का मोटिव था, कम्युनिस्ट का मोटिव था, सोशलिस्ट का मोटिव था, स्वराज पार्टी का मोटिव था, सबका मोटिव एक ही था, इंडिपेंडेंस लेना. लेकिन just withdrawal of non-cooperation movement by Gandhi ji in because what you call violence was erupted in Chauri Chaura in Gorakhpur where 22 policemen were set fire. So violence होने के कारण गांधी जी ने जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट विद्रॉ लिया तो काफ़ी
काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स ने और उस समय के जो रिवोल्यूशनरी थे काफ़ी ने गांधी जी से उस समय थोड़ा एनॉयड परेशान हो गए, गुस्सा हो गए। तो उन्होंने ये स्वराज पार्टी ने सी आर दास ने इसलिए स्वराज पार्टी अलग होकर के आईएनसी से फॉर्म किया था। और आचार्य जे बी कृपलानी से याद रखिएगा कि 1947 एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इनकी वाइफ थी सुचित्रा कृपलानी हु वाज द फर्स्ट फीमेल chief minister of India, and she was the CM of Uttar Pradesh. And Jawaharlal Nehru was the first prime minister of India, and he had passed the resolution इन द बैंक ऑफ रवि रिवर के किनारे उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया था पूर्ण स्वराज का 26 जनवरी 1930 को। और इसी डेट को कमोरेट करने के लिए 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मतलब अडॉप्ट किया गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेंसी ऑफ टर्की? यूरो, लीरा, शिलिंग एंड रियाल? Yes, the right answer is lira. And the digital currency of which were in news previous year in news, which was launched by Facebook, is Libra. And the euro, the currency in used in Europe and used by European Union members. नॉट इट इज़ फिक्स्ड, जरूरी नहीं है कि यूरोपियन मेंबर यूरो ही करेंसी यूज़ करते हैं। जैसे कि ये स्विट्जरलैंड बीइंग द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड डेनमार्क, they use different currency, like Denmark use krona and Switzerland use Swiss franc. So and shilling is a currency of Somalia, Kenya, Tanzania. The capital of Somalia is Mogadishu, Kenya Nairobi, Tanzania Dodoma, and one more country was I will get the name I will say. And Rial is used in Iran. The capital of Iran is Tehran, and the president of Turkey is Recep Tayyip Erdogan. Recep Tayyip Erdogan. And yeah, and one is Uganda. Uganda का भी करेंसी सीलिंग है। उगांडा का कैपिटल कंपाला। एंड तंजानिया कैपिटल डोडोमा। एंड करेंसी ऑफ तंजानिया इज शीलिंग। Now let's move to the next question. Which of the following ATM is situated in the branch premises or next to the branch? The options are worksite ATM, mobile site ATM, offsite ATM, on-site ATM. The right answer is on-site ATM. See, actually we classify ATM ना on the color, मतलब एक लोकेशंस पे और एटीएम का कलर पे करते हैं। जैसे कि पिंक लेबल एटीएम होता है, ग्रीन लेबल, ऑरेंज लेबल एटीएम का यूज़ होता है शेयर वर्सेस में यूज़ करने में। पिंक लेबल एटीएम यूज्ड बाय फीमेल्स। तो उसी तरह ऑन द लोकेशन ऑफ एटीएम आर कैटेगराइज इनटू 4 or 5 टाइप्स, लाइक वर्क साइट एटीएम, मोबाइल साइट एटीएम, ऑफ साइट एटीएम, ऑन साइट एटीएम, एंड वन इज अ कैश डिस्पेंसर। कैश डिस्पेंसर में क्या होता है कि उसमें आप उसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, विड्रॉल, ओनली विड्रॉल वी कैन डू विड्रॉल। एंड द इन ऑफ साइट एटीएम यू विल फाइंड इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अगर किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मतलब बाजार में अगर कहीं पे आपको अगर एटीएम मिल रहा है तो वो ऑफ साइट एटीएम उसको बोलते हैं। और ब्रांच में जो होता है वो तो ऑन साइट हो गया। एंड मोबाइल साइट एटीएम क्या होता है ना कि जब आप अपने जीपी जब भी आपको पैसा का जरूरत है, जब भी नीड हो, तो आप अपने जीपीएस से लोकेट करो कि वेर इज योर एटीएम, जस्ट गिव द मैसेज और कॉल, द एटीएम विल बी एट योर डोर स्टेप। दिस इज नोन एज द मोबाइल एटीएम। एंड वर्क साइट एटीएम इज द एटीएम विच आर इन अ कंपनी, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक एटीएम होगा एंड इट इज यूज बाय ऑन एम्प्लॉय ओनली। जैसे कि अगर आप किसी मिलिट्री कैंप पे अगर जाओगे तो वहाँ पे एक एटीएम रहता है, वो एटीएम एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर आर्मी पर्सनल। बट कभी आर्मी लोग हम लोग को जैसे देश के लिए सेवा करते हैं तो हम लोग को भी कभी कभी चांस दे देते हैं कि आप लोग जाके विड्रॉ कर लो, लेकिन दैट इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड बाय आर्मी मैन। तो वो हो गया हमारा वर्क साइट एटीएम। एंड वर्क साइट नाउ एंड या सी दिस इज द मोबाइल एटीएम। एक मोबाइल वैन है जिसमें कि एटीएम है या कैश डिस्पेंसर है, सब चीज़ें।
Now the next, no, there's no next one. So hope you have liked this session. If you have liked this session, then only give the thumbs up and subscribe the channel for further video. And if you need some improvement, just comment in the comment box. Thank you.